very warm welcome for today's session, children. This is Harshi, your science teacher. Today we are doing chapter number 3, coal and petroleum. So topics we are going to cover are natural resources. What are natural resources? After that, fossil fuels, right? So different types of fossil fuels such as coal, petroleum, natural gas. After that, we will see the natural resources are limited, right? And next topic gonna be judicious use of energy, and then finally conservation of energy. So these 8 topics we are going to cover in this chapter. So as we all do, let's continue with the warm-up exercise. Collect a few twigs and place them on a flat surface. Ask an adult to set fire of the twigs. Be careful not to get close of fire. So what you need to do, you need to collect some twigs. थोड़ा सा twigs आप collect करो और उसमें किसी बड़े की help के क्या करना है, आपको उसमें आग लगानी है, right? So now what you will observe, what are the products formed and what is left after the twigs have burnt completely. तो क्या प्रोड्यूस होता है, क्या जब आग जलती है तो क्या प्रोड्यूस होता है जब ट्विग्स जलते हैं, और लास्ट में क्या बचता है? तो लास्ट में तो ऐश बचती है, और जब बर्न होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है, CO2 गैस इज फॉर्म्ड, एंड आफ्टर दैट व्हाट इज लेफ्ट, द ऐश इज लेफ्ट. सो लेट्स begin with the chapter now. Introduction. We utilize a variety of material to meet our fundamental needs. Some of these occur naturally while many are created by humans. So we are reading or we are learning these lines from class 3rd, 4th or 5th, right? So natural things and artificial things. So natural things means made by nature. Artificial things means made by men. We breathe air and we use water for drinking and various activities, both of which are natural resources or made by nature. So we have not made air, we have not made water. So it is made by what? It is made by nature. So that is why we call these things as natural resources. Items such as paper, cloth, furniture, computers, cars, etc. are the examples of man-made resources or artificial resources, right? So these are natural resources: water, trees, plants, all living beings including us, right? So plants, animals, birds, insects, human beings, water, air, soil, and what else? Mountains. So ये सब natural resources हैं, like computer, table, chair, carpet, house. These are all man-made things. So are we all clear about the natural and man-made thing? I am sure you are. Next is natural resources. So what are natural resources? The material obtained from the nature as classified as natural resources. जो नेचर ने बनाया है, these are natural resources. For example, air, water, soil, wildlife, forest, coal, petroleum, etc. So these all are the examples of natural resources. So let us perform an activity to know about some resources we use every day. So activity time. To list some natural and man-made resources we use. So you need to take a paper on which make 2 columns, natural resources and artificial things, and note down some things that we are using made by nature or made by men. Make a list of some different materials you use every day and classify them as natural or man-made as shown in the table 3.1. So in this table 2 things have already been given. Material in this, and this is natural or man-made thing. So material is water, and water is a natural resource made by nature.
Next is toothpaste. Toothpaste is a material and it is man-made thing. So you can note down and you can fill this table on your own. Right, so on the basis of their availability, various natural resources can be broadly divided into two categories. अब हमने natural and artificial things पढ़े, जो नेचर ने बनाए हैं these are natural things, और जो इंसानों ने बनाए हैं these are artificial things. अब on the basis of availability हम इनको दो categories में differentiate करते हैं. First is exhaustible natural thing and another one is inexhaustible natural thing. So natural things और natural resources जो exhaust हो जाएंगे वो आएंगे exhaustible natural resources में, और जो exhaust नहीं होंगे यानी ख़त्म नहीं होंगे. exhaust होना मतलब अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो यूज़ करने के बाद ख़त्म होते जा रहे हैं, ठीक है, वो दोबारा नहीं बन रहे हैं, या बन रहे हैं तो बहुत स्लो प्रोसेस से बन रहे हैं और हम उनको बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड से यूज़ कर रहे हैं, ठीक है. सो वो होते हैं एग्जॉस्टेबल. अगर हम किसी चीज़ को बहुत जल्दी जल्दी बार बार और बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो ऑफकोर्स कुछ चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, राइट, और कुछ चीज़ें होती हैं जो ख़त्म नहीं होती हैं. सो दीज विल कम अंडर inexhaustible natural resources. So what are these? So natural resource which can be exhausted as a result of human consumption, these are known as exhaustible natural resources. For example, coal, petroleum, water, forest, mineral, natural gas, etc. So these all are exhaustible natural resources, right. So हम इसको जितना ज़्यादा यूज़ करते जाएंगे उतना ये ख़त्म होती जाएंगी, एग्जॉस्ट होती जाएंगी, राइट. और इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन सी होती है? द नेचुरल रिसोर्सेज विच आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड due to human activities and are present in unlimited quantities. These are called inexhaustible natural resources. And what are the examples? Examples are air and sunlight. So these are inexhaustible natural resources. So it is given in this table format, resources. It is categorized into two, natural and artificial or man-made. Under natural, we have grouped into two, exhaustible and inexhaustible natural resources, whereas exhaustible are coal, petroleum, water, minerals, forest and natural gas, whereas inexhaustible resources are air, sunlight, wind. And after that, man-made things. So the list is huge, right? So like examples have been given here, pen, chair, car, etc. So these will come under the artificial or man-made resources. Now, under natural resources, we are going to learn about the fossil fuels. As the name of the chapter is coal and petroleum. So coal और petroleum क्या है? Natural resource है and natural में भी exhaustible resource है, right? So fossil fuels क्या होते हैं? Fossil fuels are naturally existing or carbon containing substances that upon combustion, combustion means जलने का जो process होता है, this is called combustion, in the presence of air or oxygen. और कोई भी चीज़ कब जलती है? अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो तो कोई भी चीज़ जल नहीं पाती है, राइट. सो एयर, और जो एयर का पार्ट है एक कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या? ऑक्सीजन. सो दैट इज व्हाई इट इज रिटन एयर और ऑक्सीजन जनरेट हीट एनर्जी. सो जब भी कोई चीज़ जलती है तो क्या प्रोड्यूस करती है? हीट एनर्जी, राइट. तो फॉसिल फ्यूल के बारे में हम पढ़ रहे हैं. फर्स्ट थिंग, ये नेचुरल it is exhaustible natural resource, right. जैसे जैसे हम यूज करते जा रहे हैं वो खत्म होती जा रही है. आफ्टर दैट इट इज कंटेनिंग कार्बन, सबसे ज़्यादा कार्बन है, राइट. और उसके बाद ये कंबशन प्रोसेस में के लिए क्या ज़रूरी होता है? ऑक्सीजन ज़रूरी होता है. तो जब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होती हैं तो क्या देती हैं? क्या करेंगी? तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है. So they can be described as material of biological origin found within the earth's crust that can be utilized as a source of energy. So what is fossil fuel? Fossil fuel क्या होता है?
ये वो बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं जो अर्थ की क्रस्ट के नीचे फॉर्म होते हैं और इनको बर्न करके या इनसे हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, राइट। सो जितने भी फॉसिल फ्यूल्स है लाइक केरोसिन है, पेट्रोल है, डीजल है और क्या है, और आपका ये इन सब चीज़ों से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, वी विल डिस्कस डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, और कोल प्रोडक्ट्स भी क्या क्या होते हैं, जो ये सब क्या करते हैं, हीट एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तो हमें एनर्जी मिलती है। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ fossil fuel. Fossil fuels are created naturally through the decomposition of plants and animals that became buried under the earth's surface due to geological changes millions of years ago. अब fossil fuel की अगर हम स्टोरी बात करें, सो ऐसा नहीं है कि ये कुछ 10-20 ईयर्स में या 50 और 100 ईयर्स में बना होगा, जो इसको बनने में मिलियन एंड मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं। यस, तो कोल बनने में या फॉसिल फ्यूल बनने में बहुत सारे साल, मिलियंस ऑफ ईयर्स इट टेक्स। तो इसमें क्या होता है कि जब प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स, वो क्या होते हैं, जब ज़मीन में या अर्थ क्रस्ट में क्या होते जाते हैं, नीचे दफन होते जाते हैं, राइट। और उनके ऊपर और लेयर्स आ जाती हैं, सॉइल की, पानी की, सिल्ट की, बहुत सारी लेयर्स के ऊपर लेयर्स फॉर्म होती रहती हैं। तो जो नीचे जो डेड बॉडीज़ थी, किसकी, एनिमल्स की डेड बॉडीज़ थी, या फिर प्लांट्स, जो डेड प्लांट्स थे, ट्रीज थे, इनका क्या होता है, इनके ऊपर लेयर्स, अगर हम लेयर्स के ऊपर 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 लेयर्स फॉर्म होती जाएंगी, तो क्या होगा, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्जर्ट होगा। प्रेशर होता है और हीट होती है और नीचे तक एयर तो पहुंच नहीं पाती है, तो एयर एब्सेंट होती है, तो प्रेशर और हीट की वजह से वो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। सो दे आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द अर्थ थ्रू ईदर डिगिंग और ड्रिलिंग। और हम इसको कैसे निकालते हैं अर्थ क्रस्ट से या तो हम डिग करते हैं, खोदते हैं, या फिर ड्रिल करके। आपने ड्रिलिंग मशीन यू मस्ट हैव सीन, अगर हमें कुछ अपनी वॉल्स में कुछ कराना होता है या अब वुडन वर्क कराते हैं, तो कारपेंटर्स क्या यूज़ करते हैं, दे आर यूजिंग द ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा डीप अंदर तक चली जाती है, ठीक है। सो ड्रिलिंग से या फिर डिगिंग से हम इनको निकालते हैं। फॉसिल फ्यूल्स आर कंसीडर्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज एज देयर फॉर्मेशन रिक्वायर्स मिलियन ऑफ ईयर्स। ऐसा नहीं कह सकते कि फॉर्मेशन बिल्कुल ख़त्म है, फॉर्मेशन होता रहता है, क्योंकि एनिमल्स जो है, फॉरेस्ट होते हैं और एनिमल्स, प्लांट्स, ये भी हर लिविंग बीइंग की एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का अपना एक लाइफ स्पैन होता है, राइट, जिसके बाद वो क्या होते हैं, मर जाते हैं। तो क्या होता है, इनको ये बारी तो होते रहते हैं, ज़मीन में क्रस्ट में बारी होते हैं, लेकिन फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स और फॉसिल फ्यूल इज वेरी 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 स्लो। अब कितने मिलियन ऑफ ईयर्स पहले हुआ था, राइट, 200, 300, 400 मिलियन ऑफ ईयर्स पहले अगर हुआ है, और अगर आज हम सारा फॉसिल फ्यूल ख़त्म कर देते हैं, जिस स्पीड से हम यूज़ कर रहे हैं उस स्पीड से वो बन नहीं रहा, राइट। अगर फॉर्मेशन प्रोसेस स्लो है और यूज़ करने का टाइम या स्पैन बहुत ज़्यादा है, स्पीड बहुत ज़्यादा है, तो क्या होगा, वी विल कॉल देम नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, क्योंकि जितनी तेज़ी से हम उसको यूज़ कर रहे हैं, हम अर्थ से निकाल रहे हैं फॉसिल फ्यूल को, उतनी तेज़ी से वो बन नहीं रहा है, राइट। सो अनफॉर्चुनेटली देयर रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग एट अ फास्टर रेट देन दे आर फॉर्म। तो वो बहुत जल्दी यूज़ हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं, पर बन कैसे रहे हैं, बहुत 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 ही स्लो प्रोसेस में। सो फॉसिल फ्यूल्स कैन बी classified into 3 categories. First is solid fuel. Solid fuel example is coal. Next is liquid fuels, and the example is petroleum, heavy oil or bitumens. These are the examples of liquid fuels, and the gaseous fuel, which is natural gas. So you know that CNG, compressed natural gas, so this comes under gaseous fuels, right. So fossil fuel हमने देखा कैसे बनता है,
जब प्लांट्स और एनिमल्स क्या होते हैं, बरी हो जाते हैं अर्थ क्रस्ट में, मरते जाते हैं और उनके ऊपर लेयर्स के ऊपर लेयर्स फॉर्म होती रहती है, कभी फ्लड आता है, सिल्ट आती है और सॉइल क्रस्ट मतलब सॉइल की लेयर्स बन जाती हैं या फिर मिट्टी की लेयर्स बन जाती हैं, उसके ऊपर और कुछ आ गया, सपोज कोई वॉल्केनिक एक्टिविटी हो गई तो बहुत सारा लावा आ गया, लग गया, उसकी एक लेयर बन गई, उसके अलावा और उसके ऊपर ट्रीज और प्लांट्स गिरते जा रहे हैं, फिर लेयर के ऊपर, तो लेयर के ऊपर लेयर के ऊपर लेयर बनती जा रही है। तो सबसे नीचे क्या होगा, tremendous pressure and heat, because of this it is converted into fossil fuel, और fossil fuel का process बहुत slow है बनने का, that is why it is known as non renewable energy। और इसको हमने 3 ग्रुप्स में कैटेगराइज किया है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। सॉलिड फ्यूल का एग्जाम्पल है कोल, लिक्विड फ्यूल का एग्जाम्पल है पेट्रोलियम, heavy oil or vitamins, and gaseous fuel का example है natural gas। So start with the coal। So we have already discussed how it is getting formed, and it is made up with the carbon, hydrogen and oxygen compound, right? और इसमें कुछ कुछ नाइट्रोजन भी होता है, सल्फर भी होता है एंड फॉस्फोरस भी होता है, क्योंकि ये किससे बन रहा है, डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स से। तो प्लांट्स में हाइड्रोजन भी होता है, कार्बन भी होता है, ऑक्सीजन कंपाउंड्स भी होते हैं, नाइट्रोजन कंपाउंड भी होते हैं, तभी तो प्रोटीन बनता है। सो नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, ये सब कंपाउंड किस में होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स में होते हैं, लेकिन मोस्टली सब खत्म हो जाते हैं, सिर्फ बचता क्या है, कार्बन बचता है। So it is found deep under the surface of the earth from where it is obtained by digging। So the production and use of fossil fuel rise environmental concern as they produce carbon dioxide on burning, which is the greenhouse gas, and leads to the global warming। So we all know that carbon dioxide is a green gas which is responsible for global warming। Global warming means increasing the temperature of अर्थ, राइट। तो क्या होता है, जब फॉसिल फ्यूल बर्न होता है तो बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, ठीक है। सो हाउ द कोल गॉट फॉर्म्ड, सो वी ऑलरेडी नो द स्टोरी हाउ इट इज गेटिंग फॉर्म्ड। सो जस्ट क्विकली गो थ्रू दिस पैरा। कोल originated from the dead remains of trees, ferns and other plants that existed 300 to 400 million years ago in certain regions of eastern United States। coal formation occurred in swamps। swamps क्या होते हैं, दलदल। swamps कहाँ, ज़्यादातर इस तरीके के swamps होते हैं डेल्टा में, डेल्टा के पास जब रिवर्स जो होती हैं वो मर्ज हो रही होती हैं, कहाँ पर, सी और ओशन में। तो वो जो साइड का जो सॉइल वाला जो एरिया होता है वो मोस्टली स्वैम्प एरियाज होते हैं। सो दैट्स सबमर्ज्ड बाय सी वाटर, और उसके ऊपर क्या होता है, सी वाटर भी आता है। सो बार बार सी वाटर लहरें आती हैं तो पानी पीछे भी जाता है और फिर आगे भी वापस समुद्र में आ जाता है, राइट। सो द प्रोसेस इन्वॉल्व द कवरिंग ऑफ डेड प्लांट्स विद रॉक एंड सॉइल। सो क्या होता है, रॉक्स भी पानी के साथ तो सब बहकर आता है, सी वाटर जब आएगा तो, और वैसे भी जब रिवर्स बह के आ रही हैं तो रिवर्स में रॉक्स भी होती हैं, पेबल्स, स्टोन्स, और सॉइल होती है, सिल्ट होती है, राइट। सो सबसीक्वेंटली डिकम्पोज्ड बाय द बैक्टीरिया। और कोई भी डिकम्पोजिशन का प्रोसेस वी ऑल नो, डिकम्पोजर्स कौन है, बैक्टीरियाज है। इन लास्ट चैप्टर वी हैव स्टार्टेड। सो न्यू प्लांट्स emerged in the soil only to be buried again under layers of soil and rocks। Forests are disrupted by the volcanic eruptions and earthquakes। earthquake भी आते हैं, volcanic eruptions भी होते हैं, तो फिर क्या होता है, लावा भी निकलता है, और फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके जो रिमेन्स होते हैं वो और ज़्यादा नीचे जाते रहते हैं, क्योंकि शेकिंग होती है, अर्थक्वेक आते हैं तो अर्थ जो होती है वो शेक करती है, राइट। सो अर्थक्वेक लीडिंग टू देयर बरियल बीनीथ द अर्थ सरफेस कवर्ड बाय सैंड, क्ले एंड वाटर। और उसके ऊपर लेयर्स बन जाती हैं, किसकी, क्ले की बन जाती है, सैंड की बन जाती है, वाटर वजह। तो ओवर अ टाइम दीज रिमेन्स डिसेंड्स डीपर ड्यू टू द जियोलॉजिकल फोर्सेस। तो जैसे जैसे टाइम बीतता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स ना,
इट टेक्स मिलियंस ऑफ ईयर्स। तो क्या होता है, धीरे धीरे करके इस तरह से जब एक्टिविटीज़ होती हैं तो जो रिमेन्स होते हैं वो धीरे धीरे नीचे दबते चले जाते हैं और उनके ऊपर लेयर फॉर्म होती जाती है। सो सब्जेक्टेड टू हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर विद इन द अर्थ एंड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, they underwent a transformation into coal. This gradual chemical process of converting wood into coal, this is known as carbonization. तो इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइजेशन। कोल फॉर्मेशन जो मिलियंस ऑफ ईयर्स में होता है, जो एनिमल्स एंड ट्रीज के रिमेन्स जो होते हैं वो बरी होते जाते हैं, उनके ऊपर लेयर्स फॉर्म्स होती चली जाती हैं। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज कार्बोनाइजेशन. During this process, volatile substances were expelled while the carbon content of the decomposed plant's matter increases. तो हमने पढ़ा था बहुत सारी चीज़ें होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वो सब धीरे धीरे करके एलिमिनेट होते जाते हैं और ज़्यादा कंटेंट किसका बचता है, कार्बन का कंटेंट बचता है. So carbonization is a very slow process and may have taken thousands of years to convert decaying plants matter into coal. Right, children? Coal is mainly carbon as plant contain carbon compound, but the carbon content is different in different varieties of कोल. अब कोल भी डिफरेंट वैरायटी का होता है क्योंकि कोल में मेजॉरिटी जो होती है वो कार्बन कंटेंट ही होता है. सो और जितना पुराना कोल होता जाता है उतना ही क्वालिटी इम्प्रूव होती जाती है. राइट. सो इनिशियल से स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन गिव्स राइज टू अ सब्सटेंस नोन एज पीट. राइट. तो सबसे पहले ये देखो आप, ह्यूज फॉरेस्ट ग्रो अराउंड 300 मिलियंस अगो कन्वर्टिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ. तो पहले कवरिंग मोस्ट ऑफ द अर्थ, पहले बहुत ज़्यादा डेंस फॉरेस्ट होते थे पहले, क्योंकि इतना ज़्यादा कमर्शलाइजेशन नहीं हुआ था, इतने ज़्यादा फैक्ट्रीज नहीं थे, घर नहीं थे, पॉपुलेशन भी इतनी नहीं थी, तो क्या था, डेंस फॉरेस्ट हुआ करते थे. तो जब ये क्या होते थे, बरी हो जाते थे, मतलब गिर जाते थे, मर जाते थे, एनिमल्स भी, प्लांट्स भी, ट्रीज भी, तो क्या होते थे, वो धीरे धीरे सॉइल में बरी होते थे. तो सबसे पहला जो फॉर्मेशन ऑफ कोल होता है या ये सब बरी होते हैं, इसको बोलते हैं हम पीट. राइट. सो द वेजिटेशन डाइज एंड फॉर्म्स पीट. तो पीट सबसे खराब क्वालिटी का कोल होता है. कोल होता ही नहीं है, इनफैक्ट मतलब फॉर्मेशन स्टार्ट होता है इसका पीट का. इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, ओनली 50 to 60% कार्बन कंटेंट. और अगर इसको निकाल कर अगर इसको जलाया जाएगा, अगर हम इसको एज अ फ्यूल यूज़ करेंगे, तो सोचो कितना ज़्यादा क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होगा. राइट. सो इनिशियल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन गिव राइज टू अ सब्सटेंस नोन एज पीट विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम कोल इटसेल्फ. Peat is an accumulation of partially decomposed leaves, twigs and branches. It possesses significant moisture content and relatively low कार्बन कंटेंट. कितना कार्बन है, सिर्फ 50 और 60% ही इसमें कार्बन है. 50 और 60 कार्बन है, मॉइस्चर भी है, तो क्या होगा, ये सबसे लो क्वालिटी का कोल होता है या इनिशियल फेज आप बोल सकते हो. उसके बाद अब और टाइम बीत रहा है इसके ऊपर, अब ये लेयर नीचे आ गई धीरे धीरे, क्योंकि लेयर्स तो कंटिन्यूसली बन रही हैं, उसके ऊपर और लेयर्स आ गई, और ये अब क्या हुआ, और टाइम होने के बाद ये फिर किस में कन्वर्ट हो गया, लिग्नाइट कोल में. ठीक है. टाइम जैसे जैसे निकलता जाएगा और ज़्यादा लेयर्स फॉर्म होती जाएंगी, और जो बरिड प्लांट्स और एनिमल्स थे वो कहाँ और नीचे होते जाएंगे, और फिर सेकेंड स्टेज कोल जो होता है इसको हम लिग्नाइट बोलते हैं. इसमें कार्बन कंटेंट बढ़ जाता है अप टू 70%. Right. So in the second phase of coal formation, brown coal, this is known as lignite. It is produced. Lignite is comprised of compressed woody matter that has undergone a reduction in moisture. अब धीरे धीरे क्या होता है, moisture content खत्म होता जा रहा है, क्योंकि पीट में बहुत ज़्यादा moisture होता है. उसके बाद जब वो पीट के बाद कुछ सालों बाद और कुछ 100 साल 200 साल धीरे धीरे करके मॉइस्चर कंटेंट खत्म होता जा रहा है. अब नाउ इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू लिग्नाइट कोल, और कार्बन कंटेंट कितना हो गया इसमें, 70%. यहाँ 50 to 60% था और यहाँ पर
लिग्नाइट कोल में 70% हो गया. वाइल लिग्नाइट इज मोर सॉलिड कंपेयर टू द पीट, और ज़्यादा सॉलिड हो जाता है, ज़्यादा हार्ड हो जाता है. इट इज स्टिल रिमेन्स सॉफ्ट कंसिस्टेंसी मेकिंग इट सस्पेक्टेबल फॉर टू क्रम्बलिंग. अभी भी क्या होता है, ये पीट से तो ज़्यादा हार्ड हो जाता है, बट स्टिल इट इज सॉफ्ट. नेक्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं फाइनल स्टेज ऑफ कोल फॉर्मेशन, which is known as bituminous coal emerges. This dense, dark and brittle type of coal has undergone substantial reduction in moisture and impurities. Impurities का level बढ़ जाता है इसमें, और moisture जो reduction of moisture, sorry, not increasing, it is reducing moisture content और impurity content इसमें कम होते चले जाते हैं और कार्बन कंटेंट बढ़ता चला जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट इज बिटुमिनस कोल. सो ये थर्ड टाइप ऑफ कोल होता है विद अ कार्बन कंटेंट रेंजिंग फ्रॉम 80 to 85%. सो हमने कहाँ से स्टार्ट किया था, 50 to 60, देन लिग्नाइट कोल में 70%, अब 80 to 85% क्या हो गया, कार्बन कंटेंट हो गया. इम्प्योरिटीज कम हो गई हैं, बाकी के जितने कंटेंट थे वो खत्म हो रहे हैं, वो एलिमिनेट हो रहे हैं और कोल हार्ड होता जा रहा है. सो सर्व एज एन एफिशिएंट फ्यूल, हाउएवर इट्स कंबशन रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ ash and sulfur compound contributing to pollution. तो ये वाला कोल यूज किया जा सकता है. पीट और लिग्नाइट इज नॉट अ कोल. सो बिटुमिनस कोल को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर फिर भी हम इसको बर्न करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म करता है और ऐश बनती है. लास्ट एंड द last quality or bestest quality of coal which is known as anthracite, right? So this is anthracite forms. ये एकदम डार्क ब्लैक कलर का कोल होता है. द फाइनल स्टेज इन द फॉर्मेशन ऑफ कोल, दिस इज फॉर्म्ड व्हेन बिटुमिनस कोल रिमेन्स इन द अर्थ फॉर लॉन्ग टाइम. तो क्या बना था, बिटुमिनस कोल अगर बहुत लंबे समय तक अर्थ में रहता है तो क्या होता है, ये और इसके अंदर से इम्प्योरिटीज़ और ख़त्म हो जाती हैं और कार्बन कंटेंट रह जाता है और हार्ड हो जाता है. लेकिन जब हम इस कोल को बर्न करते हैं तो ये बहुत लंबे समय तक बर्न होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी कम निकलती है. सो एंथ्रासाइट इज फाइनल स्टेज इन फॉर्मेशन ऑफ कोल. दिस इज फॉर्म्ड व्हेन बिटुमिनस कोल remains in the earth for a long time and it is subjected to extreme pressure. क्योंकि सबसे लोएस्ट लेयर है, सबसे लोएस्ट लेयर होगी, ऊपर जितनी लेयर्स फॉर्म होती जाएंगी तो ये इस लेयर के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर होगा. एंड एक्सट्रीम प्रेशर, दिस इज ऑल्सो कोल्ड, दिस इज कॉल्ड हार्ड कोल and contains over 98% of carbon. So 90% of carbon. Anthracite burns with very little smoke and up to a longer time than bituminous coal. So ज़्यादा लंबे समय तक जलता है और जो बहुत ज़्यादा धुआं भी नहीं, इससे धुआं भी नहीं होता है, राइट. तो स्मोक कम होती है क्योंकि इसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है, लंबे समय तक जल रहा है तो स्मोक भी कम निकलती है और कम स्मोक में निकलेगी तो पॉल्यूशन भी कम होगा. डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल, अब ये एक प्रोसेस होता है जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. इसमें क्या किया जाता है, कोल को गर्म किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ एयर, राइट. वहाँ पर एयर प्रेजेंट नहीं होती है. So when coal is heated strongly in the absence of air, it produces various useful organic and inorganic products. So let's see what products are being formed in this process. So this process is called destructive distillation of coal. तो अब क्या किया, कोल को in the absence of air उसको गर्म किया जा रहा है. तो सबसे पहला प्रोडक्ट जो मिलता है वो है कोक, फिर हमें कोलतार मिलता है और कोल गैस. ये तीन प्रोडक्ट हमें मिलते हैं किस प्रोसेस में, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल. सो फर्स्ट वन इज coke. The solid residue left behind after dry distillation or destructive distillation of coal, this is known as
कोक, और इसके अंदर 98% कार्बन होता है, which is used to manufacture steel and extract many metals from its ores, right? तो ये एक प्रोसेस होता है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल का। इसमें कोल को बर्न किया जाता है, किसमें? इन द एब्सेंस ऑफ एयर। अब एयर में भी बहुत सारे डिफरेंट गैसेस होती हैं, ठीक है, तो वो उनसे रिएक्शन नहीं कराया जाता, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको गर्म किया जाता है। तो सबसे पहले जो रेजिड्यू यानी सॉलिड बचता है वो होता है कोक। कोक के अंदर 98% कार्बन कंटेंट होता है, और इसको क्या करते हैं, स्टील की मैन्युफैक्चरिंग और स्टील में यूज़ किया जाता है, और extract many metals from the ores. So when steam is passed over red hot coke, जो कोक यानी कि जो हमें ये प्रोडक्ट मिला जिसके अंदर 98% कार्बन कंटेंट है, तो इसके ऊपर जब स्टीम पास कराई जाएगी, स्टीम पास कराने से क्या होगा, इट प्रोड्यूसेस वाटर गैस which is a fuel gas. It is the mixture of carbon monoxide and hydrogen. तो ये क्या है, कोक, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं C से। C is कोक, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा कार्बन है, 98% कार्बन है, एंड C stands for कार्बन। तो ये कोक है, इसको इसके ऊपर वाटर वेपर्स को पास कराया गया। वाटर वेपर्स क्या होती हैं? H2O, वाटर से होती हैं, वाटर को गर्म किया जाता है, वाटर वेपर्स फॉर्म होती हैं। सो H2O अगर हम इसके ऊपर से पास कराएंगे तो क्या बनेगा, वाटर गैसेस बनेगी। वाटर गैसेस में ये होता है CO, विच इज कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। क्या बना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनी अगर कोक पर से हम वाटर वेपर्स को पास कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हेन एयर इज पास्ड ओवर रेड हॉट कोक, प्रोड्यूसर गैस which is mixture of carbon monoxide and nitrogen is formed। यहाँ पर क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ पर फॉर्म हो रहा है स्टीम पास कराने से। अगर हम रेड हॉट मतलब एकदम गर्म कोयला, रेड हॉट कोक के ऊपर से अगर हम वाटर वेपर्स पास कराएंगे तो वाटर गैस बनती है। वाटर गैस मीन्स कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन फॉर्म हुआ। अब अगर एयर को पास कराएंगे, एयर में बहुत सारी मिक्सचर ऑफ गैसेस होती है, राइट। तो जब हम एयर को पास कराते हैं वाटर वेपर की जगह, अगर हम रेड हॉट कोक के ऊपर एयर पास कराते हैं तो क्या बनता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या बना, नाइट्रोजन। तो इसको बोलते हैं प्रोड्यूसर्स गैस। तो प्रोड्यूसर गैस में दो गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड। सो व्हेन 2C विच इज कोक और यू कैन से कार्बन, इसकी रिएक्शन हुआ O2 विच इज ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन भी होता है, तो क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन बनेगा, राइट। सो दीज आर कॉल्ड प्रोड्यूसर गैसेस। तो सबसे पहले हमें पता, कोक को जब हमने गरम किया, गरम करने के बाद उसके ऊपर वाटर वेपर्स अगर हम पास कराते हैं तो वाटर वेपर के साथ जब वो रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, वाटर गैस। वाटर गैस क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। और अगर हम वाटर वेपर्स की जगह रेड हॉट कोक के ऊपर से एयर पास कराते हैं तो क्या बनता है, प्रोड्यूसर्स गैस। प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, नाइट्रोजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। सो दिस इज कोक, और कोक क्या होता है, 98% प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है। कार्बन का इसमें कार्बन कंटेंट कितना होता है, 98% होता है। नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हमें मिलता है आफ्टर डिस्टिलेशन प्रोसेस विच इज कोल तार। सो कोल तार क्या होता है, इट इज अ डेंस डार्क लिक्विड कैरेक्टराइज्ड बाय अ अनप्लेजेंट ऑडर। बहुत अजीब सी स्मेल आती है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है, कंप्राइजिंग अप्रॉक्सीमेटली 200 सब्सटेंसेस। इस लिक्विड के अंदर आसपास लगभग 200 तरीके के सब्सटेंसेस या कंपाउंड्स इसके अंदर मिक्स्ड होते हैं। इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ डाइज। इससे क्या क्या बनाते हैं, डाई बनता है, ड्रग्स बनता है, परफ्यूम्स बनते हैं, एक्सप्लोजिव्स बनते हैं, पेंट्स एंड मोर, राइट। सो ऑलमोस्ट 200 से भी ज़्यादा
इससे चीज़ें बनाई जा सकती हैं, किससे? कोल तार से. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट product that we are getting is coal tar. Coal tar, it is dense dark liquid characterized by अनप्लेजेंट ऑडर. इसके अंदर बदबू होती है, अजीब सी स्मेल होती है, और क्या होता है, ये बहुत डार्क कलर का लिक्विड होता है. So the next product that we get from this process, this is known as coal tar. Coal tar is dense, dark liquid characterized by an unpleasant odor comprising approximately 200 substances. तो ये एक डार्क कलर का लिक्विड होता है जिसके अंदर 200 से भी ज़्यादा सब्सटेंसेस होते हैं और एक अलग सी स्मेल होती है. इट फाइंड्स एप्लीकेशन इन द प्रोडक्शन ऑफ dyes, drugs, perfumes, explosive, paint and more. तो इससे क्या क्या बहुत सारी मेडिसिन्स भी बनती हैं, डाइज बनती हैं, पेंट्स बनते हैं, एक्सप्लोजिव में भी यूज होता है, परफ्यूम्स में भी यूज होता है. while pitch derived from coal tar was traditionally employed in road construction. तो जब रोड कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है. मॉडर्न प्रैक्टिसेस नाउ फेवर बिटुमेन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट फॉर रोड मेकिंग पर्पस. पहले कोल तार को यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी क्या किया जाता है, बिटुमेन को यूज़ किया जाता है कंस्ट्रक्शन में. नेक्स्ट इज coal gas. The gas generated during the coal processing, this is blend of methane and carbon monoxide. So क्या बनता है इसमें, इसको कोल गैस बोलते हैं. कोल गैस में मीथेन मेन होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड. तो देखिए अभी हमने यहाँ पर वाटर गैसेस पढ़ी थी. वाटर गैसेस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है. नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर गैस. प्रोड्यूसर गैस में क्या होता है, इसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बट नाइट्रोजन होता है. थर्ड टाइप होती है कोल गैस. कोल गैस में क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बट मेनली क्या होता है, मीथेन होता है. मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन कॉमनली रेफर टू एज नोन एज कोल गैस. इसको क्या बोलते हैं, कोल गैस बोलते हैं because it is a mixture of methane, carbon monoxide and hydrogen. This gas serves as an excellent fuel and finds application in numerous industrial units located in proximity to coal processing plants. So बहुत सारी industries में coal gas को as a fuel यूज किया जाता है. So petroleum is the lifeline at present civilization. In fact, economy of a nation is dependent on its petroleum reserves. It is also called what, black gold. तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं, ब्लैक गोल्ड भी बोलते हैं. क्यों, काला सोना, क्योंकि किसी भी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ किस पे डिपेंड करती है, पेट्रोलियम. हाउ मेनी और हाउ मच रिजर्व्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज प्रेजेंट इन अ country. Now we have discussed about the coal. Next is petroleum, which is the liquid form. पेट्रोलियम हमने पढ़ा था जिसमें क्रूड ऑयल होता है. पेट्रोलियम, ज़्यादातर लोग पेट्रोल और पेट्रोलियम को सेम समझते हैं, बट वी ऑब्टेन पेट्रोल फ्रॉम पेट्रोलियम. हम पेट्रोल को किससे निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोलियम से एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो दीज आर नॉट सेम. पेट्रोलियम इज अ डार्क कलर्ड viscous strong smelling liquid. The name has been derived from, कहाँ से आया है, पेट्रा. पेट्रा का मतलब होता है रॉक और ओलियम का मतलब होता है ऑयल. जो रॉक से जो ऑयल निकलता है उसको हम पेट्रोलियम कहते हैं. क्रूड पेट्रोलियम इज अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ solid, liquid and gaseous hydrocarbons mixed with the water, salts and other particles. तो क्रूड ऑयल, बेसिकली हम पेट्रोलियम को, इसको भी क्या बोलते हैं, क्रूड ऑयल ऑब्टेन करते हैं. क्रूड ऑयल से फिर हम डिफरेंट प्रोडक्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं. तो क्रूड ऑयल कैसा होता है, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस हाइड्रोकार्बन्स का मिक्सचर होता है. और वो किसके साथ मिक्सड होते हैं, इट इज मिक्सड विद वाटर, सॉल्ट्स एंड अदर particles. It is the mixture of compound. It is lighter than water and also
insoluble in it. तो पेट्रोलियम हमेशा वाटर के ऊपर फ्लोट करता रहता है. वाटर की और पेट्रोलियम की अलग अलग लेयर्स फॉर्म हो जाती हैं, बिकॉज पेट्रोलियम क्या होता है, लाइटर इन वेट होता है और इसी वजह से वो पानी के ऊपर तैरता रहता है. ठीक है, इसकी दो डिफरेंट लेयर्स बन जाती हैं एंड इट इज नॉट गेटिंग मिक्स्ड विथ वाटर. पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द अर्थ बिटवीन लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. सो इम्परवियस रॉक्स कौन सी होती हैं, जो नॉन पोरस रॉक्स होती हैं, जिनसे कोई लिक्विड पास थ्रू नहीं कर पाता. सिंस इट इज लाइटर देन वाटर, इट अकर्स अबव द वाटर लेयर. नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल अंडर द रॉक्स एज शोन इन द फिगर. राइट, तो अब क्या है, ये सबसे पहले अर्थ क्रस्ट है, उसके नीचे क्या है, ये सब सेकेंड लेयर है विच इज शेल. राइट, ये फर्स्ट लेयर हो गई अर्थ की, क्रस्ट है, उसके नीचे शेल है, उसके नीचे क्या है, इम्परवियस रॉक्स. ये येलो पार्ट, दिस इज इम्परवियस रॉक्स, और ये सबसे नीचे वाली भी इम्परवियस रॉक है. सो अब इसमें लिखा था ना, पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द अर्थ बिटवीन लेयर्स ऑफ इम्परवियस रॉक्स. सो ये दो लेयर्स हैं, इनके बीच में क्या है, इम्परवियस रॉक के ऊपर वाटर है, और ये वाटर से क्योंकि लाइट होता है इसलिए ये वाटर के ऊपर होता है. दिस लाइट पिंक कलर की लेयर जो होती है, दिस इज पेट्रोलियम लेयर. राइट, और ये पानी के ऊपर फ्लोट करता रहता है, और इसके ऊपर ये येलो पार्ट विच इज विजिबल, दिस इज कॉल्ड नेचुरल गैस, क्योंकि ये गैशियस फॉर्म में है और ये वाटर के साथ और इस लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होगी, इसलिए पेट्रोलियम के ऊपर हमें नेचुरल गैस मिलती है. नेचुरल गैस में CNG. राइट, सो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम. अब ये कैसे, अभी हमने कोल की फॉर्मेशन स्टोरी देखी, अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पेट्रोलियम कैसे फॉर्म होता है. Petroleum is thought to have originated through the influence of heat and pressure on the remains of marine organisms. Marine organisms क्या है, जो sea और oceans में organisms होते हैं. राइट, sea और ocean में भी बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, तो ये मरीन ऑर्गेनिजम्स का है, अकरिंग इन द एनवायरनमेंट डिवॉइड ऑफ एयर. रिमेन्स ऑफ मरीन एनिमल्स दैट पेरिश्ड मिलियन ऑफ ईयर्स अगो सेटल्ड एट द ओशन फ्लोर एंड became covered by layers of sand and rocks. So मिलियन ऑफ ईयर्स पहले जो मरीन एनिमल्स थे, उनकी बॉडीज जो क्या होती गई, वो नीचे होती गई, और उसके ऊपर क्या होती हैं, रॉक्स की लेयर आती गई, सैंड की लेयर आती गई धीरे धीरे. तो वो क्या हुआ, वो नीचे दबते चले गए और उनके ऊपर लेयर फॉर्म होती गई. ओवर टाइम द decomposed organic matter as a result of bacterial action sank deeper into the earth, encountering condition of high pressure and temperature that caused it to undergo liquefaction. राइट, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि वहाँ सॉलिड यानी सॉइल में अर्थ के नीचे क्या होते हैं, एनिमल्स के जो डेड रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स होते हैं, और वो नीचे बरी होते जाते हैं, उनके ऊपर लेयर्स फॉर्म होती जाती हैं. ये क्या होता है, यहाँ पर पेट्रोलियम फॉर्म होता है, क्योंकि ये सी बेड पर हो रहा होता है, सी और ओशन बेड पर होता है. तो क्या होता है, मरीन एनिमल्स, जो डेड मरीन एनिमल्स होते हैं, वो नीचे बरी होते जाते हैं, उनके ऊपर सॉइल की, वाटर की लेयर्स फॉर्म होती चली जाती हैं, और ये जो लेयर्स बनती है इसमें डीकॉम्पोजिशन होता है, बैक्टीरियाज डीकॉम्पोजिशन करते हैं, और क्या होता है, ये लिक्विफिकेशन हो जाता है, थोड़ा लिक्विड फॉर्म में बन जाता है. द रिजल्टिंग लिक्विड देन permitted downwards until it reached a stratum of impermeable non-porous rocks, creating a reservoir of oil trapped between the layers of rocks, resembling a reservoir of oil lakes. अब क्या होता है, नीचे जो रॉक्स होती हैं, इम्पल्सिव रॉक्स के बीच में ये जो लिक्विड यानी जो पेट्रोलियम है वो स्टोर होता रहता है, और उसके ऊपर लेयर्स फॉर्म होती जाती हैं, और जो बैक्टीरियाज होते हैं वो डीकॉम्पोजिशन करते रहते हैं, क्योंकि पानी है तो लिक्विफिकेशन होता रहता है इसका. सो दिस इज कॉल्ड
पेट्रोलियम. पेट्रोलियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग. अब हम इसको निकालते कैसे हैं? वी ऑल नो दैट इट गॉट क्रिएटेड, और ये भी फॉसल फ्यूल का ही एग्जाम्पल है. और फॉसल फ्यूल कितना मिलियंस ऑफ ईयर्स लेते हैं? 300-400 millions of years. So petroleum is extracted by drilling holes known as oil wells. इनके अंदर होल्स किए जाते हैं और इन पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को निकाला, पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को, नॉट पेट्रोल, पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं. कैसे? या तो हम नीचे होल करते हैं, ड्रिलिंग होल्स नोन एज ऑयल वेल्स into the earth's crust. When a well is drilled, natural gas is first substance to emerge. तो सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले नेचुरल, क्योंकि नेचुरल गैस ऊपर होती है, पहले नेचुरल गैस की लेयर थी, फिर उसके नीचे क्या था? पेट्रोलियम था, और फिर उसके नीचे पानी था, राइट. तो सबसे पहले जब हम होल करते हैं और तो क्या निकलता है? नेचुरल गैस निकलती है, विच इमर्जेस विद सिग्निफिकेंट प्रेशर. बहुत ज़्यादा प्रेशर से फिर ये बाहर आती है. आफ्टर सर्टेन ड्यूरेशन ऑयल बिगिंस टू फ्लो स्पॉन्टेनियसली प्रोपेल्ड बाय द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस. और फिर पहले बहुत तेज़ी से गैस इमर्ज होगी, गैस निकलेगी, नेचुरल गैस बहुत ज़्यादा उसमें निकलती है. फिर कुछ टाइम बाद क्या होता है? इस प्रेशर की वजह से ऑयल बाहर आने लगता है, right. The initial pressure diminishes, the oil is pumped out from the well and transported to the refining units for further processes. अब ये crude oil होता है, हम इसको ऐसे यूज नहीं कर सकते हैं. So then it is sent to the refineries. Refineries वो इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है और डिफरेंट products obtained किए जाते हैं. So refining units for further processing. In India, oil wells are located in various regions including Assam, Gujarat, offshore of Mumbai, and in the deltas of Kaveri and Godavari rivers. So I told you क्या था? जब remains कहाँ ज़्यादा मिलते हैं या फॉसल फ्यूल कहाँ ज़्यादा मिलता है? डेल्टा रीजन पर भी मिलता है, क्योंकि वहाँ पर स्वैम्पी एरियाज होते हैं. स्वैम्पी एरियाज में क्या होता है? जो एनिमल के रिमेन्स होते हैं वो बरी होते जाते हैं, उसमें सी वाटर भी ऐड होता है, सिल्ट आ जाता है, सैंड और सॉइल की लेयर आ जाती है. तो वो क्या होती है? लेयर्स फॉर्म होती जाती है. तो इसीलिए इंडिया में कहाँ कहाँ मिलता है? गोदावरी और कावेरी डेल्टा पर मिलते हैं. असम, गुजरात और मुंबई में कहाँ हमें ऑयल के जो वेल्स हैं वो मिलते हैं. Unlike coal, petroleum has been used in only for about 200 years. Initially, only the oil that seeped or leaked through the cracks of the rocks were used. अब ये ज़्यादा यूजेस कब से हो गया? 200 साल के आसपास से ज़्यादा हम इसको यूज़ करने लगे हैं. वरना पहले तो जो रॉक्स के बीच में से ऑयल अगर निकल के आ जाता था तो उसको यूज़ किया जाता था. द फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन Pennsylvania in USA. In which year? In 1859. Now almost all continents have oil wells. सभी continents में, we all know 7 continents are there. So almost सभी continents में oil wells हैं. Antarctica is known to have the vast deposit of petroleum but due to the environmental reasons, drilling of oil wells is banned here, right. तो वहाँ पर डिगिंग ऑफ ऑयल वेल्स नहीं है, वहाँ पर बैन किया हुआ है. कहाँ? एंटार्क्टिका में. refining of petroleum. Now we have extracted the petroleum and it is sent to the refineries. अब वहाँ पर क्या process होता है that we will see, and we will see what all different products that we obtain from petroleum. The process of separating various constituents or fractions of petroleum by fractional distillation, this is called refining. रिफाइनरी में क्या हो रहा है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हो रहा है. इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इट इज नोन एज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन which is called refining. Fractional distillation of crude petroleum oil is done by using a tall
fractionating column in a petroleum refinery as shown in the figure, right? So ये एक tall लंबे लंबे क्या होते हैं, columns होते हैं. कौन से columns बोलते हैं इनको? Fractionating columns बोलते हैं. इसमें refining of crude oil होती है. Crude petroleum oil is heated about 400 degrees centigrade in a furnace, and the vapor that are formed are allowed to enter the bottom of the tall fractionating column through pipelines. अब क्या होता है, यहाँ पर क्रूड ऑयल को 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको गर्म किया जाता है. अब कोई चीज़ गर्म होगी तो क्या होगा, वेपर्स फॉर्म होंगे. अब इन वेपर्स को पाइपलाइन के थ्रू इन बड़े बड़े कॉलम्स में पास कराया जाता है, राइट. अब जब ये जो वेपर्स हैं इस कॉलम में पास होती हैं, राइट, सो द वेपर ऑफ लो बॉइलिंग फ्रैक्शन राइजेस अप while the high boiling fractions are condensed at the lower side of the column. अब जो वेपर्स इतनी हल्की होती हैं वो उतना ही ऊपर जाती है. वी ऑल नो वेपर्स जब हल्की हो जाती है, गैस जब हल्की होती है तो ये ऊपर की डायरेक्शन में जाती है. तो जिनके लो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो गैसेस हल्की होती जाती हैं और वो ऊपर जाती है, राइट, कॉलम में ऊपर. और नीचे की तरफ जो रहती हैं वो रहती है जिनके बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, राइट. सो हाई बॉइलिंग पॉइंट फ्रैक्शंस आर कंडेंस्ड एट द लोअर साइड ऑफ द कॉलम. Fractional distillation continues till the crude oil is separated into 5 or 6 fractions which boil at different temperature. तो basis क्या है इसका, separation का basis जो है वो है boiling point. Different boiling point के base पर हम इनको सेपरेट करते हैं, क्रूड ऑयल को रिफाइन किया जाता है. सो इट इज सेपरेटेड इनटू 5 or 6 फ्रैक्शंस व्हिच बॉयल एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. टेबल 3.2 लिस्ट अ फ्यू फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम एंड देयर यूसेस. तो यहाँ पर 400 डिग्री सेल्सियस पर इसको क्या किया गया, इसको गर्म किया गया. क्रूड ऑयल को जो वेपर्स बनते जा रहे हैं वो वेपर्स पाइपलाइन के थ्रू इस कॉलम में जाते जा रहे हैं और उसमें जिसका सबसे लो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और फिर बॉइलिंग पॉइंट के बेसिस पर सेपरेशन किया जाता है या रिफाइनिंग होती है किसकी, क्रूड ऑयल की. ठीक है. सो वी विल सी in the table. So various constituents of petroleum and their uses. So सबसे पहले सबसे कम टेम्परेचर पर below 50 डिग्री सेल्सियस क्या मिलता है हमें, पेट्रोलियम गैस मिलती है और उसका यूज़ क्या है, डोमेस्टिक फ्यूल जो हम घरों में यूज़ करते हैं. पेट्रोलियम गैस विच इज़ कॉल्ड LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम है, 40 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे है. सो सबसे पहले ये मिलेगा क्रूड ऑयल से. अब बॉइलिंग पॉइंट को एक बेस रखा गया है एंड बिकॉज ऑफ दिस रिफाइनरीज में रिफाइन किया जाता है. उसके बाद हमें 40 to 70 डिग्री सेल्सियस पर क्या मिलता है, we get petroleum ether और which is used as solvent और dry cleaning में इसका यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट प्रोडक्ट मिलता है हमें गैसोलाइन. ये 40 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में मिलता है और दिस इज कॉल्ड मोटर फ्यूल. After that we obtain kerosene from this 170 degree Celsius to 250 degree Celsius centigrade which is fuel or illuminant, राइट. तो ये हम केरोसिन को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. उसके बाद डीजल मिलता है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है 250 डिग्री सेल्सियस टू 350 डिग्री सेल्सियस और केरोसिन डीजल क्या है, एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. उसके बाद हमें मिलता है लुब्रिकेटिंग ऑयल जो 400, ये सब लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, पिच और तार और पेट्रोलियम कोक, ये चारों अबव 400 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर, यानी इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं वो 400 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा ऊपर है, राइट. तो ये लुब्रिकेशन मिलता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन के लिए यूज़ होता है. फिर पैराफिन वैक्स से हम कैंडल्स बनाते हैं, वेसलीन और ग्रीस बनाया जाता है. पिच और तार से हम सरफेसिंग रोड्स बनाते हैं, रोड्स की सरफेसिंग, जब रोड बनती है उसके ऊपर सरफेस के लिए. एंड देन फ्यूल और इलेक्ट्रोड्स बनाए जाते हैं किससे, पेट्रोलियम कोक से, राइट. तो ये रिफाइनरी क्रूड ऑयल से हमें
इतनी सारी चीज़ें मिलती हैं आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिफाइनिंग, राइट। और ये प्रोसेस होता है ऑयल रिफाइनरीज में। नेक्स्ट इज नेचुरल गैस। ये गैसियस फॉर्म होता है। नेचुरल गैस अ फॉसल फ्यूल कॉमनली फाउंड इन एसोसिएशन विद पेट्रोलियम। पेट्रोलियम के ऊपर हमें मिली थी गैस। जब हम ड्रिल करते हैं तो हमें सबसे पहले क्या निकलता है, नेचुरल गैस ऊपर आती है। फिर नेचुरल गैस प्रेशर से एक्सर्ट होती है और उसके प्रेशर की वजह से फिर बाद में क्या होता है, ऑयल बाहर आना शुरू होता है। सो प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ मीथेन। सो नेचुरल गैस में सबसे ज्यादा क्या होता है, मीथेन होता है। इट सर्व्स एज अ क्रूशियल सोर्स ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। डोमेस्टिक फ्यूल और इंडस्ट्रियल, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में भी नेचुरल गैस यूज की जाती है एज अ फ्यूल। और अब हम ट्रांसपोर्टेशन यानी सीएनजी बसेस आ रही हैं, सीएनजी कार्स आ रही हैं, तो अब डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी सीएनजी को एज अ फ्यूल यूज कर रहे हैं। compressed natural gas, which is known as CNG, derived from natural gas, is utilized as a motor fuel due to its relatively clean nature, causing minimal pollution. ये बहुत कम pollution क्रिएट करती है, एयर पोल्यूशन इससे बहुत कम होता है। दिस गैस इज डायरेक्टली सप्लाइड फ्रॉम गैस फील्ड थ्रू पाइपलाइंस। और ये कैसे सप्लाई की जाती है, पाइपलाइन के थ्रू, राइट। जो ऑयल वेल्स जो होते हैं वहां से पाइपलाइन के थ्रू नेचुरल गैस को सप्लाई किया जाता है। नोटेबली अ नेटवर्क ऑफ सच पाइपलाइन एग्जिस्ट इन वडोदरा एंड दिल्ली। दिल्ली में सीएनजी आपको बहुत आराम से मिल जाएगा, राइट। सीएनजी पंप भी बनाए गए हैं। फॉर्मेशन ऑफ ऑयल, और यही सेम प्रोसेस है जो हमने पेट्रोलियम में देखा था। नेचुरल गैस प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। नेचुरल गैस से हम इसको एज अ फ्यूल तो यूज करते हैं, लेकिन इससे फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं और बहुत सारे केमिकल्स भी बनाए जाते हैं। व्हेन सब्जेक्ट टू इंटेंस हीट, नेचुरल गैस अंडरगोज डीकम्पोजिशन इनटू कार्बन एंड हाइड्रोजन। जब ज़्यादा हीट होता है और इसको गर्म किया जाता है तो क्या बनता है, इससे हाइड्रोजन और कार्बन बनता है। हाइड्रोजन, अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस, इज एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया which serve as a few raw material of nitrogen containing fertilizers. हमने बताया था कि केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी बनाए जाते हैं with the help of natural gas. This highlights the versatile application of natural gas in industrial process beyond its role as a fuel source. तो फ्यूल सोर्स तो है ही है, इसके साथ में बहुत सारे इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं, केमिकल्स बनाए जाते हैं और क्या बनाया जाता है, फर्टिलाइजर्स बनाए जाते हैं विद दिस नेचुरल गैस। नेक्स्ट इज नेचुरल रिसोर्सेज आर लिमिटेड। एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज हैं, जितना हम यूज करेंगे उतना हम खत्म होते जाएंगे, जल्दी खत्म हो जाएंगे, और बनने का प्रोसेस तो है ही बहुत बहुत स्लो, right? So in the beginning of this chapter we have learned that natural resources like coal, petroleum, natural gas, forest, minerals, etc., these all are non-renewable or exhaustible natural resources. They require millions of years for their formation. If we do not use fossil fuels judiciously, there is a possibility of energy crisis in future, right? So industries कैसे चल पाएंगी, या हमारे जितने भी मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं वो कैसे चलेंगे, क्योंकि फ्यूल तो ज़रूरी है, फ्यूल तो बहुत ज़रूरी है इनको चलने के लिए, और अभी हमारे पास कोई ऑल्टरनेट सोर्स नहीं है एनर्जी का, राइट। सो क्राइसिस इन द फ्यूचर, द टू मेजर कॉन्सिक्वेंसेज ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स आर, फर्स्ट इज एग्जॉशन ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, और दूसरा पोल्यूशन ऑफ एयर। एयर पोल्यूशन बहुत होता है इनको यूज़ करने से, और दूसरा ये एग्जॉस्टेबल है तो इसलिए ख़त्म होते जा रहे हैं और अभी हमारे पास कोई और ऑल्टरनेट नहीं है, राइट। सो डू यू नो बायोफ्यूल्स आर अनदर ऑल्टरनेटिव फॉर फॉसिल फ्यूल्स। कौन से होते हैं ये, बायोफ्यूल्स होते हैं। बायोफ्यूल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज, स्पेशली प्लांट which is biomass, vegetable oils and treated municipal and industrial waste.
They can be used to supplement or replace fossil fuels. Bioethanol, biodiesel and biogas are some of the examples of biofuels. Biogas जो हमने लास्ट उसमें भी पढ़ा था कि जो सीवेज ट्रीटमेंट जब होता है, सीवेज ट्रीटमेंट में क्या बनती है, जो स्लज कलेक्ट होता है, स्लज में हम एनारोबिक बैक्टीरिया उसमें ग्रो करते हैं और क्या बनती है, बायोगैस बनती है, जो कि मेनली उसमें क्या होता है, मीथेन होता है, जिसको हम एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं. Right, so judicious use of energy, as you are aware, our existing energy resources primarily derived from the fossil fuel are insufficient to meet both domestic and industrial demands. बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रीज लग रही हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहे हैं. तो क्या होता है, फॉसिल फ्यूल, अभी आज की डेट में हम जितना ज़्यादा फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं अर्थ क्रस्ट से नीचे, अर्थ में नीचे इतना ज़्यादा हम यूज़ कर रहे हैं, उतनी स्पीड में बन नहीं रहा है. राइट, सो देयरफॉर इट इज़ क्रूशियल दैट वी नॉट ओनली यूज़ द अवेलेबल रिसोर्सेज वाइजली बट ऑल्सो अवॉइड अननेसेसरली वेस्टेज. तो हमें बहुत समझदारी से इन रिसोर्सेज को यूज़ करना चाहिए, और यूज़ तो समझदारी से करना चाहिए, साथ साथ वेस्टेज को भी रोकना चाहिए. Moreover, it is crucial to explore and adopt a renewable energy sources to address our energy demands. The notable benefit utilizing renewable energy sources lies in their minimal to zero pollution impact combined with their ability to generate एनर्जी. तो इन रिसोर्सेज को हमें बहुत ध्यान से और बहुत समझदारी से यूज़ करना है और वेस्टेज को भी रोकना है. सो दीज आर ऑल एग्जाम्पल्स फॉसिल फ्यूल्स. सॉलिड का एग्जाम्पल है कोक, और कोल से हमें क्या क्या मिलता है, कोक, कोलदार और कोल गैस मिलता है. लिक्विड फ्यूल्स में पेट्रोलियम और हेवी ऑयल्स है. पेट्रोलियम में हमें मिलता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जो हमने टेबल देखा था वो सब मिलता है. नेक्स्ट इज गैसियस फ्यूल विच इज द नेचुरल गैस एंड एग्जाम्पल इज CNG. Next topic is conservation of energy. Wise and economic use of energy resources. This is called the conservation of energy. Energy को बचाना, which is called conservation of energy. Certain suggestions for the energy conservation. First suggestion. क्या suggestion है? It is advisable to turn off electrical appliances in homes, office, school, hospitals and other establishments when they are not in use to conserve electricity. हमें electricity waste नहीं करनी चाहिए. अगर हम यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस और लाइट्स और बाकी सब चीज़ें हमें स्विच ऑफ कर देनी चाहिए. नेक्स्ट suggestion is promoting the use of solar cookers, solar heaters and other devices powered by the solar energy is encouraged. क्योंकि solar energy और sunlight क्या है हमारे पास, ये एक रिन्यूएबल रिसोर्स है और ये इनएग्जॉस्टेबल रिसोर्स है. इनएग्जॉस्टेबल मतलब ख़त्म नहीं होगा, अनलिमिटेड है. तो हमें कहाँ स्विच ऑन करना चाहिए, हमें स्विच ओवर करना चाहिए सोलर अप्लायंसेस पर. Right, next is whenever possible the use of wind power for electricity generation is recommended. Windmills आपने देखे होंगे. तो windmills किस लिए यूज़ किए जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं. तो हमें क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन किससे करना चाहिए, विंड मिल से, यानी विंड एनर्जी को यूज़ करना चाहिए. Hydroelectricity energy should be produced by constructing dams and utilizing generators in water body. इलेक्ट्रिसिटी डैम्स में भी प्रोड्यूस की जाती है. राइट, और इलेक्ट्रिसिटी हमें क्या करना चाहिए, हमें थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं जो फॉसिल फ्यूल से मतलब फॉसिल फ्यूल उसमें यूज़ होता है फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन. तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन 3 तरह से होता है. थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं. हाइड्रो पावर प्लांट्स हो गए जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, यानी पानी से जो बनती है. और तीसरा होता है विंड मिल्स के थ्रू जो बनती है. तो हमें थर्मल पावर प्लांट से की जगह किस पर स्विच करना चाहिए, विंड मिल्स पर स्विच करना चाहिए और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऑप्शंस पर स्विच करना चाहिए.
Next is the conservation of tidal energy should be prioritized to driving generators, tidal energy. Next is energy derived from biomass should be generated and utilized in rural and semi-urban areas of the country. And the last is petrol and diesel can be conserved while driving by maintaining the vehicles properly, using the correct type of tires, turning off the engine while waiting at red light and driving at the moderate and constant speed ताकि हमारा fuel consumption कम हो सके, right? तो ये हमें कुछ steps लेने चाहिए to conserve the fuel. So let's memorize the points that we have learned in this chapter. Natural resources, these are the resources that we obtain from the nature or made by nature. Next is exhaustible natural resources, the natural resources which can be exhausted as a result of human consumption. Next is inexhaustible natural resources. कौन से होते हैं? The natural resources which are not likely to be exhausted, जो खत्म ना हो due to human activities and are present in unlimited quantities. बहुत ज़्यादा quantity में present होती है, जैसे कि sunlight है, air है, water है. नेक्स्ट इज फॉसिल फ्यूल. सो वाटर में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ फ्रेश वाटर को कंसीडर करें, वाटर में हम सी वाटर को भी कंसीडर करेंगे, ठीक है. फॉसिल फ्यूल्स, द मटीरियल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑरिजिन occurring within the earth crust which can be used as a source of energy, this is called fossil fuels. Next is carbonization. So this is a slow chemical process of conversion of wood into coal, right? Next is refining. What is refining? The process of separating various constituents of fraction of petroleum by fractional distillation. ये एक प्रोसेस था फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसके थ्रू डिफरेंट पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को सेपरेट करना. नेक्स्ट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी बचाना. वाइज एंड इकोनॉमिक यूज ऑफ एनर्जी resources. Now the points to be recalled: coal, petroleum and natural gas are classified as non-renewable energy resources. The byproduct of coal include coke, coal gas and coal tar. Next is the refining of petroleum yields products such as petrol, diesel, kerosene, paraffin, wax, lubricating oil, etc. And lastly, fossil fuels resources are finite and it is essential to use them judiciously. Limited resources हैं, इसलिए हमें उन्हें बहुत ही समझदारी से use करना चाहिए. So let's do the exercise together. First is darken the correct option in the OMR sheet. First is, which of the following is a fossil fuel? Kerosene, diesel, coke. So the correct answer is all of them, right? So darken the circle, option D. So I will darken this. Rest all you need to do. Question number 2, which of the following is the best quality coal? And the answer is anthracite. This is the best quality coal. Third, natural gas contain methane, butane, carbon monoxide and hydrogen, carbon monoxide and nitrogen. So it contains mainly methane. Fourth is, which of the following is not obtained from petroleum? So what is not obtained? This is producer gas. It is not obtained from petroleum. And else lubricating oil, petroleum gas and petroleum ether, it is obtained from petroleum. Fifth one, which substance is formed by the carbonization of dead vegetation? So what do we get? We get coal after the carbonization of dead vegetation. Next question is fill in the blank. First fill up, we have the process of separation of different components of petroleum by fractional distillation. This is called refining. Next fill up, coke is obtained by dry distillation of coal. Third fill up is CNG is the least polluting fuel for motor vehicles.
Fourth one, the fraction of petroleum which boils below 40 degrees Celsius. This is called petroleum gas and it is used as domestic fuel. Fifth, Philip, petroleum occurs in nature between the layers of impervious rocks. Next question, state T for the true and F for the false against each statement. Natural gas mainly consists of methane. Yes, this is true. Next is CNG is less polluting than petrol. Yes, correct. Kerosene is obtained by fractional distillation of petroleum. Again, true. Next one, fossil fuels cannot be made in the laboratory. Yes, correct. And water gas is a mixture of carbon monoxide and hydrogen. Again, correct. So, all are true. So children, next is very short answer type question. First question we have, what are fossil fuels? Can you prepare them in laboratory? So fossil fuels, the material of biological origin occurring within the earth's crust which can be used as a source of energy and it cannot be created in laboratory. Question number 2, give the classification of fossil fuel. Answer is fossil fuels are classified into coal, petroleum and natural gas. Question number 3, give the percentage of carbon content in each of the following varieties of coal. Peat, in this 50 to 60% of carbon present. Anthracite coal which contains 90% of carbon. Lignite, it has 70% and bituminous coal, it has 80 to 85% of coal. Next is, what is water gas? So water gas, when steam is passed over red hot coke, water gas is produced. It is the fuel gas and mixture of hydrogen and carbon monoxide. Next is, what is coal gas? So coal gas, it is generated during processing, coal processing and blend of methane, hydrogen and carbon dioxide. Next is produces gas. It is the mixture of carbon monoxide and nitrogen. It is produced when air is passed over red coke. Question number 5, which constituent of petroleum is used as a domestic fuel? This is petroleum gas. Last one, why is judicious use of fuels necessary? Answer is, using fossil fuels judiciously is necessary to reduce environmental harm, conserve resources and ensure energy security. Children, next is short answer type question. First question, what are fossil fuels? How is their excessive use a matter of environmental concern? So fossil fuel, we have already written the answer of this. So you can copy from this very short answer type, first question of very short answer type, right? And second part of this question we are writing, their overuse harm the environment by emitting greenhouse gases, causing air and water pollution and damaging the ecosystem. Question number 2, what are exhaustible and non-exhaustible energy sources? Give 2 examples of each. So exhaustible energy sources like coal and crude oil are finite and can be depleted. Non-exhaustible energy sources such as solar and wind energy are essential and limitless and renewable. Essential, limitless and renewable energy. Next is, how is coke formed and what are its uses? Answer is, coke is formed by destructive distillation of coal. It has a high content of carbon and used as a fuel in steel making and extracting many metals from their ores. Question number 4, what are the advantages of using CNG as a fuel? Answer is, it can be transported easily through pipelines and it is a clean fuel
and does not give harmful gases. Right? Next is answers, long answer type question. So these questions you need to write down the answers on your own. That's it for this chapter. Hope you have enjoyed this session. We will meet in the next class of science. Till then, stay connected. Bye kids.